children. Today we will read chapter 6. Chapter name Human Resources. मानव संसाधन. Do you know the way we collect information about the whole class? Similarly, we can collect information about the entire population, and it is done at regular intervals. Let us discuss about it. क्या तुम जानते हो कि जिस प्रकार हम लोग पूरे क्लास के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, ठीक उसी प्रकार पूरे देश के जनसंख्या के विषय में सूचना कुछ समय के अंतराल इकट्ठा किया जाता है. चलो आज इसी पे डिस्कशन करते. What is census? What is it carried out? Collection and cataloging of information about people living in a country or any particular region of the country is known as census. It is done every 10 years under the regulation of central government. जनगणना क्या है और ये क्यों किया जाता है? सूचना को लोगों के, अपने देश में रह रहे लोगों के बारे में या अपने देश के किसी विशेष क्षेत्र में रह रहे लोगों के बारे में सूचना या सूचीपत्र इकट्ठा करना, उनको सूचीबद्ध करना, उनके विषय में जानकारी को जनगणना कहलाता है. वो हर 10 साल बाद केंद्रीय सरकार के निगरानी में किया जाता है. The last census in our country was carried out in the year 2011. It was done for the 7th time after the independence. In the census of 2011, there was a provision of providing a unique ID number and an identity card to every citizen. It was the special feature of the census 2011. It is our duty to provide correct information to the government. हमारे देश का लास्ट जनगणना 2011 में किया गया था. वो ये जो जनगणना अब तक स्वतंत्रता के बाद अब तक 7 बार जनगणना हो चुकी है. 2011 के जनगणना में ये प्रावधान किया गया था कि सबको एक यूनिक आईडी नंबर और एक आइडेंटिटी कार्ड हर नागरिक को दिया जाएगा. ये 2011 के जनगणना का स्पेशल फीचर था. ये हम सबका कर्तव्य है कि हम सब सही जानकारी सरकार को, अपने विषय में सही जानकारी सरकार को उपलब्ध कराएं. Human resources is the human capital of our country. The development of a nation depend on its human capital. It is the wealth of a nation. मानव संसाधन किसी भी हमारे देश का मानव पूंजी है. किसी भी देश का जो विकास है वो मानव पूंजी पर ही निर्भर होता है. वो जो उस देश में रहने वाले मानव जो होते हैं उस देश के ताकत
या समृद्धि होते हैं। डेवलपमेंट of a country depends not only on the area of the country or its natural resources, but it is also based upon the quality and quantity of human resources that contribute a lot to the economic development. किसी देश का जो विकास है सिर्फ उस देश के क्षेत्रफल या प्राकृतिक संसाधनों पर ही निर्भर नहीं होता है, बल्कि वहाँ के जो मानव संसाधन हैं उनकी गुणवत्ता और वो कितने हैं, उनकी क्या मात्रा है, क्या संख्या है, इस पर भी निर्भर होता है। और वो अपने देश के विकास में, आर्थिक विकास में कितना भागीदारी निभा रहे हैं, इस पर उस देश का विकास निर्भर होता है। The health, education, professional skill and ambition increase the productivity of the nation, and as a result the country develops. स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और महत्वाकांक्षा, वहाँ के लोगों की महत्वाकांक्षा देश के प्रोडक्टिविटी को, उत्पादकता को बढ़ाती है और इसके परिणाम स्वरूप देश का विकास होता है। This is done in order to take necessary measures. Census is mandatory in order to plan out country's 5-year development plan in regard to food, water, housing facilities, industry, electricity, employment, education and conservation. ये इसको लेना, जनगणना किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जनगणना के आधार पर ही कोई देश अपने 5 साल के विकास का उस देश में रहने वाले लोगों के लिए फूड, जल, खाना, आवास सुविधा, उद्योग, बिजली, रोजगार, शिक्षा और संरक्षण की व्यवस्था करता है। Nowadays, Forest Department keeps a record of endangered animals, birds and plants. Even domestic animals are counted. आजकल तो वन विभाग भी विलुप्त हो रहे हैं जानवरों, पक्षियों और पौधों का रिकॉर्ड रखता है। यहाँ तक कि पालतू जानवरों को भी गिना जाता है, काउंट किया जाता है। An estimate of the population of India. The total land area of our country is 32,87,263 square kilometer, which is 2.42% of the world total land area. Area wise, India stands 7th in the world. More than 16% of the world's population lives in India. India stands second in terms of population after China.
टोटल लैंड एरिया के हिसाब से हमारे देश का 32,37,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, जो कि विश्व के कुल लैंड एरिया का 2.42% है। एरिया वाइज इंडिया विश्व में 7वें स्थान पर है। वर्ल्ड का 60% से अधिक पॉपुलेशन इंडिया में है। इंडिया चाइना के बाद पॉपुलेशन के स्थान पे दूसरे स्थान पर है। पॉपुलेशन की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से इंडिया चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है। Qualitative human population is also called human resources. The quality of human resources depends on education and intelligence. Skilled citizens like doctors, educationists, engineers, sportsmen, industrialists, businessmen, farmers, artisans, laborers, and other responsible citizens are the human resources. Children and youth are the potential resources. गुणात्मक दृष्टि से मानव पॉपुलेशन गुणात्मक मानव जनसंख्या ही ह्यूमन रिसोर्सेस कहलाती है, मानव संसाधन कहलाते हैं। ये वहाँ पे रहने वाले लोगों का गुण, उनकी क्वालिटी पर निर्भर करता है। उसके आधार पर रहने वाले लोगों के गुण के आधार पे, क्वालिटी के आधार पे ह्यूमन रिसोर्सेस निर्धारित होता है, उस देश का विकास निर्धारित होता है। ह्यूमन रिसोर्सेस की क्वालिटी जो है वो उनके एजुकेशन, उनके शिक्षा और बुद्धिमत्ता पर निर्भर होती है। कौशल युक्त नागरिक जैसे डॉक्टर, शिक्षाविद, इंजीनियर, खिलाड़ी, उद्योग व्यापारी, किसान, कारीगर और मजदूर और अन्य जिम्मेदार नागरिक ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, उस देश के ह्यूमन रिसोर्सेस हैं। बच्चे और युवा जो हैं उनके उस देश के संभावित संसाधन हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ। The population of India has increased by 18.1 crores in a decade between 2001 to 2011. However, the population growth rate has gone down, which is the noteworthy point. Moreover, there has been an increase in the number of literate, educated citizens. भारत की जनसंख्या 2001 से 2011 के बीच 18.1 करोड़ बढ़ गई।
जनसंख्या की ये जो वृद्धि है, वृद्धि दर है, वो किसी भी जनसंख्या की ये वृद्धि बहुत महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का ये वृद्धि दर ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन द नंबर। इसका कारण अब शिक्षित नागरिकों और पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि हो रहा है, वृद्धि होना है। 2001 से 2011 के बीच जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1%, वह जनसंख्या का वृद्धि दर नीचे गया। इसका कारण ये उल्लेखनीय है। इसका कारण नागरिकों का शिक्षित होना भी है। शिक्षित नागरिकों की संख्या अब बढ़ रही है। The population of India in 2001 was 102.87 crores, which has increased to 121.01 crores in the year 2011. This is matter to worthy about the central government, and hence various policies and schemes have been launched to bring the population growth under control. Consequently, the rate of population growth has gone down by 1.7%. 2001 में भारत की जनसंख्या 102.87 करोड़ थी। करोड़ से बढ़कर 121 करोड़ 2011 में हो गई। ये किसी भी केंद्रीय सरकार के लिए चिंता का विषय है और इस कारण इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की नीतियां और योजनाएं लॉन्च की गई, जिससे जनसंख्या का वृद्धि दर नियंत्रित हो गया। नतीजा, जनसंख्या का वृद्धि 1.7% नीचे चला गया। रीजन फॉर द पॉपुलेशन ग्रोथ। जनसंख्या वृद्धि के कारण। पॉपुलेशन इंक्रीज इज ए नेचुरल phenomenon, but there are various factors responsible for the population growth. These are as follows. First is immigration from other countries for industrial or trading or educational or just for the settlement purpose. जनसंख्या वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसके लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के लिए ये सब इस प्रकार हैं। जो पहला कारण है वो कि जब दूसरे देश के लोग व्यापार करने के लिए या उद्योग बिठाने के लिए या फिर शिक्षा ग्रहण के लिए दूसरे देश में आकर बस जाते हैं,
Second is the lower death rate in the last 2 decades. Earlier, the rate of population growth was low as the infant and female mortality rate was high. The number of pregnant women dying due the unavailability of proper medical aid for high. दूसरा कारण मृत्यु दर का 2 दशकों से मृत्यु दर कम होना है, क्योंकि पहले पॉपुलेशन का वृद्धि दर बच्चों की और औरतों की मृत्यु दर अधिक होने से जनसंख्या का वृद्धि दर कम था, क्योंकि बच्चे और औरतों की मृत्यु का दर बहुत ज़्यादा था। बच्चों और औरतों की मृत्यु बहुत ज़्यादा होती थी, इस कारण जनसंख्या वृद्धि कम था। बहुत अधिक संख्या में गर्भवती औरतें उचित चिकित्सा साधन ना मिलने से उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाती थी। The modes of transportation and roads were not as good as now, so people could not reach the medical center easily in times of need. There was no control over diseases like cholera, typhoid, plague, etc. Even the famines were more frequent, claiming many lives. Medical facilities were not as developed and accessible as now. पहले ट्रांसपोर्टेशंस के साधन नहीं थे, आजकल की तरह नहीं थे, और रोड भी ठीक नहीं था, जिससे लोग समय पे मेडिकल सेंटर आसानी से नहीं पहुंच पाते थे, ज़रूरत के समय आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। और कुछ रोगों पे जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, प्लेग जैसे रोगों पे कोई कंट्रोल नहीं था, और यहाँ तक कि जो सूखा या आपदा की जो स्थिति होती थी उसके कारण भी बहुत अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती थी, बहुत अधिक संख्या में जानें चली जाती थी। मेडिकल सुविधा भी इतने विकसित नहीं थे आजकल की तरह। The scenario was completely changed today. Nutritious food is now easily available to people. Communicable diseases are under control due to the advanced medical treatment and vaccination programs. पर अब दृश्य पूरी तरह से चेंज हो गया है। आजकल लोगों को पौष्टिक खाना आसानी से उपलब्ध है। संक्रामक रोग, एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट और टीकाकरण के प्रोग्राम के कारण अंडर कंट्रोल है। इमीडिएट medical help, speedy mode of transport and communication are easily available. Pre and post disaster management
has improved and people who get affected are rehabilitated faster. आजकल मेडिकल सुविधा तुरंत और बहुत तेज़ी से ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन सुविधा के कारण आसानी से उपलब्ध हैं। आपदा स्थिति की आने वाले आपदाओं के विषय में पहले से ही जानकारी मिल जाती है। विकसित हो जाने के कारण आपदा सूचनाओं के विषय में पहले से ही जानकारी मिल जाती है और प्रभावित होने वाले लोग कम होते हैं और उनको आसानी से उनका रिहेबिलिटेट उनको किया जा सकता है, आसानी से उनको दूसरे जगह बसाया जा सकता है। Thus the death rate has gone down। इन सभी कारणों से जो मृत्यु दर है वो कम हो गई है। This has led to higher population growth rate। इसके कारण जो जनसंख्या दर है, वृद्धि दर है, वो बढ़ गई है। Apart from the above factor, the average life expectancy of humans has increased। The average life expectancy of human in 1920 was 41 years, which has now increased to 63-64 years। इन्हीं सब कारणों से जो मानव जीवन काल है का औसत जीवन काल मनुष्य का वो बढ़ गया है। पहले औसत 1920 में मानव की औसत जीवन 40 से 41 साल के बीच में होता था, जबकि अब बढ़ के 63 से 64 वर्ष के अंदर हो गया है। There are many factors responsible for an increase in the birth rate. Few of them are illiteracy, superstitions, orthodox thinking, social custom, where a male child is considered important, child marriage, poverty, widow remarriage, negative attitude towards the idea of a small family, etc. अभी बर्थ रेट जीवन दर बढ़ने का मेन कारण कई कारण जिम्मेदार हैं। बर्थ रेट बढ़ने के जीवन दर बढ़ने के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं। उसमें से कुछ हैं अशिक्षा, अंधविश्वास, रूढ़िवादी विचार, सामाजिक कुप्रथा की जिसमें कि मेल चाइल्ड होना जरूरी है, बाल विवाह, गरीबी, विधवा पुनर्विवाह और छोटे फैमिली के लिए नकारात्मक विचार होना है। Rising population causes administrative problem. For example, shortage of food, water, housing, environmental, population conservation, employment, traffic congestions, etc. To deal with such problem, many policies, scheme and legal measure have to be planned. पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ने के कारण कई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि
खाना, पानी और घर की कमी होना, पर्यावरण प्रदूषण, संरक्षण, रोजगार, ट्रैफिक जाम होना आदि, ये सब समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण। इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए कई नीतियां, योजना और कानूनी स्टेप बनाए जाते हैं जिससे कि इस समस्या से निपटा जा सके। थैंक यू चिल्ड्रन।